Hello students, today our topic is nervous system disorder, in which we will be covering epilepsy in this PPT. Now I would like to give you a brief introduction what actually nervous system do. So nervous system is responsible for three main functions, that is sensitization, integration and motor. And there are various kinds of cells, hormones, chemicals which are being involved in the nervous system. Some basic type of cells we can say, or some basic mechanisms or specialized cells we can say, are neurons, which are mainly responsible for transferring of the information to the other parts and integrating the whole system. Now in this we will cover a very first disorder, that is epilepsy. So let's start. I would like to start up with the basic definition of the epilepsy. So epilepsy is a group of disorder mainly affecting the nervous system. These disorders are interrelated, having unique characteristics, including a tendency for recurrent seizures. What actually a seizure is? So seizure is a phenomenon characterized by excessive hypersynchronous discharge of cortical neuron activity. Seems confusing. Okay, let me simplify for you. एपिलेप्सी में क्या होता है, जो हमारी ब्रेन सेल्स हैं यानी कि हमारे न्यूरॉन्स नॉर्मली क्या करते हैं, इम्पल्सेस और सिग्नल्स ट्रांसफ़र करते रहते हैं मैसेजिंग के लिए या कुछ और अदर वर्क्स के लिए, जिससे हमारी बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग मेंटेन रहे. लेकिन जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होती रहती है अनकंट्रोल्ड वे में न्यूरॉन से, एक्सेसिव डिस्चार्ज होता रहता है, उस कंडीशन को हम नाम देते हैं सीजर. और सीजर के मेंटेन रहने से ही डेवलप होती है हमारा डिसऑर्डर एपिलेप्सी. तो सिंपल हमारा एपिलेप्सी क्या है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बाय स्पेशलाइज्ड ब्रेन सेल्स, दैट इज मेनली न्यूरॉन्स. How can we distinguish it? We can simply identify the disorder with certain kind of behavior changes like involuntary muscle contraction or loss of consciousness, memory, and various other kinds of symbols, which we will discuss in this particular topic. Talking about the epidemiology, the incidence rate of epileptic seizures is around 50 cases per 1 lakh of the population, around 50 million people. High risk observed in extreme of ages. Prevalence of in European countries is about 0.5%. Now we will talk about the basic causes and etiology. So first of all we will like to talk about genetic influence. जेनेटिकली क्या है, कोई सिंगल टाइप का म्यूटेशन हो सकता है हमारे न्यूरॉन्स में, या मल्टीपल कोई म्यूटेशन हो सकता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से क्या है, एक्सेसिव फायरिंग हो रही है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की हमारे न्यूरॉन्स से, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या इनहेरिटेड डिजीज़ की वजह से हो सकता है. एक्वायर्ड कॉजेज़ में हम बात करें तो एक्वायर्ड कॉजेज़ में हमारा आ गया हेड इंजरी, हेड ट्रॉमा, कोई न्यूरो सर्जरी हुई है, या कोई ब्रेन से रिलेटेड हमें कोई डिजीज़ है, इन्फेक्शन तो नहीं, जैसे कि मेनिंजाइटिस, इन्फ्लुएंजा, मम्स, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया. कंजेनाइटल में कोई इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर तो नहीं है. विड्रॉल ऑफ सर्टेन ड्रग्स एंड इवन द अल्कोहल कॉजेज सीजर्स, लाइक alcohol withdrawal, and some drugs like benzodiazepines, barbiturates, antileptics, especially during the course of treatment for the anti-epileptic drugs. Drug-induced seizures like anti-diabetic drugs, anesthetics, antidepressants, antipsychotics, which are mainly related to our nervous system. Now we would like to talk about the pathophysiology. So as I told you earlier, the neurons क्या हैं, interconnected हैं complex network में through synapse. synapse के थ्रू क्या है, वो अपने सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते रहते हैं अदर उससे, जिससे कि वो आगे मैसेज फॉरवर्ड होता रहे. ये करते कैसे हैं, वो कुछ केमिकल्स के थ्रू, जिन्हें हम नाम देते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स का. अब न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक इनहिबिटरी और एक एक्साइटेटरी. इनहिबिटरी क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स वो हैं जो हमारे आयन चैनल्स को इनहिबिट करते हैं, यानी कि
आयन इनफ्लो या आउटफ्लो को बंद कर देते हैं। एक्साइटेटरी क्या है? आउटफ्लो इनफ्लो को एक्साइट करते हैं, मतलब ओपन अप कर देते हैं। तो इनहिबिटरी में हम यहाँ बात कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए गाबा, इट एक्ट एज ऑन आयन चैनल, इंक्रीजेस क्लोराइड आउटफ्लो एंड डिक्रीज चांसेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल फॉर्मेशन। ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हो गया। एक्साइटेटरी में हमारा स्पार्टेट, ग्लूटामेट, जो क्या है सोडियम और कैल्शियम के इन्फ्लक्स को बढ़ा देता है। अब क्या है, जब हमारा न्यूरॉन क्या है एक्सेसिव डिस्चार्ज करने लगेगा बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में, तो हमारे न्यूरॉन्स को क्या है डैमेज होगा। डैमेज की वजह से कोई इंजरी हो सकती है, कोई केमिकल या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा। उसकी वजह से क्या है, एक लोकलाइज पार्ट में कुछ टाइप के एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें हम बेसिकली पार्शियल और जनरलाइज सीजर्स में डिवाइड करते हैं। पार्शियल में पर्टिकुलर लोब या हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है, जनरलाइज में ओवरऑल ब्रेन इन्वॉल्व रहता है हमारा। सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए एबनॉर्मलिटीज इन आयन चैनल्स। आयन चैनल जैसे मैंने आपको पीछे बताया इनहिबिटरी एक्साइटेटरी रहते हैं, उनकी वजह से क्या है एंटी एक्टिविटी इंक्रीज आउट कर जाती है, जिसकी वजह से क्या है हाइपर डिस्चार्ज होता है हमारे न्यूरॉन्स में। सीजर फोकस यानी कि एक सिंगल फोकाई में होगा, या फिर पर्टिकुलरली धीरे धीरे डेवलप हो जाता है वो नियर बाई एरिया में, जो पर्टिकुलर एक फॉर्म ले लेता है हमारे सीजर की। और जो सीजर हमारे रिपीटेड होने लगते हैं तो वो डेवलप हो जाते हैं एपिलेप्सी में। टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप्स में डिवाइडेड है ये, पार्शियल सीजर्स और जनरलाइज। पार्शियल देखिए पर्टिकुलर लोब या हेमिस्फीयर की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया की। जनरलाइज में हम ओवरऑल ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पार्शियल हमारा अगेन 3 टाइप्स का है, जैसे कि सिंपल पार्शियल, जिसमें क्या है हमारी कॉन्शियसनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इनवॉलंटरी मूवमेंट्स रहेंगे हमारी बॉडी में, जैसे जर्किंग या लिस्ट मैकिंग, पैरेस्थीसिया टिंगलिंग सा रहेगा, डिस्फेजिया, एबनॉर्मल मूवमेंट या सडन कन्फ्यूजन। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में आपका कॉन्शियसनेस मान ली अपना कॉन्शियस हो सकते हैं, फॉलोड बाय पर्पसफुल बिहेवियर, हेलुसिनेशंस, एग्रेसिव बिहेवियर। सेकेंडरी जनरलाइज में पार्शियल ऑनसेट इन्वॉल्विंग जनरल टोनिक क्लोनिक सीजर। जनरलाइज सीजर्स की बात करें तो इसमें ओवरऑल ब्रेन इन्वॉल्व रहता है हमारा। ये 4 टाइप्स से डिवाइडेड है, जैसे कि एब्सेंट सीजर, इट और इससे दूसरा नाम होता है पेटिटमल सीजर। ये मोस्टली चाइल्डहुड में देखा जाता है, विच इज मेनली एसोसिएटेड विद ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस स्टार्टिंग विद ओकेजनल आई ब्लिंकिंग एंड अटैक लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स। आप पहचान भी नहीं पाएंगे। मायोक्लोनिक को दूसरा नाम दिया जाता है बायलेटरल मैसिव एपिलेप्टिक मायोक्लोनस। इसमें इनवॉलेंट्री मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रहता है, रिदमिक जर्किंग ऑफ फेशियल या लिम्ब या ट्रंक मसल्स रहती हैं। क्लोनिक की केस में क्या है सडन रिलैक्सेशन होता है हमारी बॉडी मसल्स का और पेशेंट फॉल फॉरवर्ड। क्लोनिक में एक स्टिफनेस आ जाती है हमारी मसल्स में, जिसकी वजह से पेशेंट्स क्या है अपने बैक की तरफ फॉल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जनरलाइज टोनिक क्लोनिक में क्या है, ये दोनों टोनिक और क्लोनिक का कॉम्बिनेशन है। इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विद इंटरप्टेड रेस्पिरेशंस और रेस्पिरेटरी एक्सटेंडेड लेग्स, हेडेक, कंफ्यूजन, टंग बाइटिंग। एटॉनिक में क्या कहते हैं इसे ड्रॉप अटैक, जैसे कि एसोसिएटेड विद सडन लॉस ऑफ पोस्टरल टोन एन इंडिविजुअल फॉल्स टू द ग्राउंड। रिस्क फैक्टर्स हमारे क्या रहते हैं, स्लीप डेप्रीवेशन, या किसी एपिलेप्टिक पेशेंट का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसने अपने डोज वगैरह मिस करना शुरू कर दिया, या अल्कोहल विड्रॉल्स, फिजिकल मेंटल एग्जॉशन, फ्लिकरिंग लाइट्स कुछ लोगों को रहता है, रिकरेंट इन्फेक्शंस लाइक ब्रेन सेल्स या उसमें से नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड कुछ भी, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस जैसे इनबॉर्न हमने मेटाबॉलिक एरर पढ़ी थी, अनकॉमन रीजंस होगा जैसे लाउड नॉइजेस या हॉट बाथ्स एक्सेट्रा। डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस हम मेनली कर सकते हैं सॉरी मेडिकल हिस्ट्री, जेनेटिक टेस्टिंग, ईईजी में हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रैक कर सकते हैं ब्रेन में। सीटी स्कैन एंड एमआरआईज आर मोस्ट प्रोमिनेंट इन दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर। फिर मोस्ट और ज़्यादा एग्रेसिवली देखें तो स्पेक्ट्रोस्कॉम, जिससे और
बेहतर रिजल्ट हम दे सकते हैं और पर्टिकुलर लोकेशन को डायग्नोज आउट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो बेसिकली हम क्या सीजर फ्रीक्वेंसी और रिड्यूस कंट्रोल करते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के थ्रू। एसोसिएटेड थेरेपी है नॉर्मल लाइफ मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी को रिड्यूस, ये जो मेनली हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट में। थैंक यू।